if we can talk about India first, why can't they talk about America? नो सी इंडिया फर्स्ट इज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. वो कहते हैं अमेरिका सुपीरियर. तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर वो नियो नाजिज्म की बू आ रही है. While he is talking about 10% to 20% tariff increase on other countries, he is talking about 60% tariff increase on China. If US allies with India or the relationships get more better, China is going to create some trouble on the borders. It is for sure. China wants an economic dominance over the world. Economic dominance. They are not bothered about geography. They want economic dominance. They want to rule Chinese economy everywhere. So India should not allow itself to become a tool of America to counter China. With Trump coming in power, can he address the elephant in the room? Can he end this war game? Trump is going to be even a bigger elephant in the room. What exactly is deep state? Is it also in India or is it controlling the governments all over the world? तो ये जो डीप स्टेट है ये बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है. और चाहे विवेक रामास्वामी अपनी बात कर लें, चाहे ट्रंप अपनी बात कर लें, इसको अप्रूव करना 1-2 दिन का काम नहीं है. Hello and welcome to the show. As Donald Trump takes on the chair of the United States President, now the world will see a global power change. The regime is changing, the ideologies are changing, a lot of things are happening around the world. That is why we have with us Major Amit Bansal ji. Sir, who is a geopolitical expert, international expert, will tell us about the changes that are going to happen in the world and how they are going to affect India. We will have an elaborative conversation with our expert on the chair. Sir, welcome to the show. Thank you. Sir, firstly and foremostly, I would like to ask, what are the remarkable changes that are going to happen in very near future and in regards to India as well? Or will they be good or bad for India? Okay. So, Abhishek, first of all, I would like to tell you, there are a lot of difference between making a statement on Twitter, making a statement in media, and translating into the actual policy decision of the United States of America. True. कोई भी डिसीजन होता है उसको पास करना पड़ेगा, उसको आपको कांग्रेस में पास करना पड़ेगा, उसको आपको सीनेट में पास करना पड़ेगा, उसको आपको मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, उसके सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति लेनी पड़ेगी. Yes. इन अमेरिका ऑल्सो वी डोंट हैव एन ऑटोक्रेटिक रोल दैट ट्रंप ने अगर कोई चीज पास की या उसने कुछ स्टेटमेंट दिया तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स द गॉस्पेल ट्रूथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द प्रायोरिटीज. ट्रंप ने आते इतने सारे अनाउंसमेंट किए हैं कि आप उन अनाउंसमेंट्स को किस तरह से आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन में ट्रांसलेट कर पाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है. पहली बात वो करते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की. वो कहते हैं अमेरिका सुपीरियर. तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर वो नियो नाजिज्म की बू आ रही है. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जैसे हम बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स वर विजिबल व्हेन हिटलर स्टार्टेड spreading his tentacles in Germany long back. Sir, if we can talk about India first, why can't they talk about America? No, see, India first is but not at the cost of others. Okay. Here there is a difference. We are talking about India because we want to develop ourselves. But Trump के केस में क्या है कि America, but at the cost of what? Okay, Gulf of Panama is now Gulf of America. So and so is now America. So अब आप जब बार बार जो ग्लोबल चीज़ें हैं उनके ऊपर आप करना शुरू कर देते हैं. He made statements about Canada. वो भी अपने आप में एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट था. ही मेड स्टेटमेंट अबाउट अदर कंट्रीज. वो भी अपने आप में एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट था. ही सेड कि ओके मैं इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा. दैट इज ओके. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन बी देयर, बट जहां आप एग्जीक्यूटिव डिसीजंस करते हैं वहां जहां मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं. ट्रू. ठीक है. अब हम बात आते हैं कि इनके जो डिसीजंस क्या हैं. अभी कहते हैं कि भाई हम H1B वीज़ा पॉलिसी को कम करेंगे, हम जो है आपके टैरिफ बढ़ाएंगे और हम कंपनियों के ऊपर लगाम लगाएंगे. इन्होंने एक दिक्कत इशू कर दिया है कि भाई जो नाटो कंट्रीज हैं दे हैव टू स्पेंड 22% ऑफ देयर एनुअल जीडीपी ऑन डिफेंस. नहीं करेंगे तो वी विल नॉट लेट यू लिव इन नाटो पीसफुली. हम आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्शन करेंगे. अब इस तरह की जो कहना चाहिए ऑटोक्रेटिक डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को ट्रबल कर रहे हैं. और यही कारण है कि अगर हम ओवरऑल अभी आज ग्लोबल सिनेरियो देखें तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो रखी है ट्रंप के डिसीजंस की वजह से. अब ये डिसीजन किसके फायदे में होंगे, किसके नुकसान में होंगे, किसका अपॉर्चुनिटी आएगी, किसके लिए थ्रेट होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है. और ये हम तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक कि ये डिसीजंस, ये डिक्लेरेशंस एक्चुअल डिसीजंस में कन्वर्ट ना हो जाएं. राइट. अब बात आती है इंडिया की. हम बात करेंगे अगर इंडिया के केस में, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, इंडिया के लिए थ्रेट्स भी हैं. इन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर कंट्रोल की बात की है, इन्होंने टैरिफ इंक्रीज की बात की है. तो उस केस में
जाहिर सी बात है इंडिया के इंटरेस्ट को झटका लगेगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, फॉरेन करेंसी का रेवेन्यू जो आता है वो आता है आईटी इंडस्ट्री से। तो हमारे जो आईटी जाइंट्स हैं, विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल, ये लोग जो जिनके प्राइमरी क्लाइंट्स अमेरिका के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर H1B वीज़ा के ऊपर रोक लगती है तो इनकी मैन पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इनके रेवेन्यू को चोट लगेगी। सही बात। दूसरी बात आती है जो इन्होंने कहा कि हम पेरिस अकॉर्ड से बाहर हो जाएंगे। अब इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा पावर हो गई, अदानीज भी हैं और सुजलॉन भी, ये लोग अमेरिका के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म चलाते हैं और अमेरिका के अंदर पेरिस अकॉर्ड के तहत दे आर गिविंग ह्यूज लॉट ऑफ सब्सिडीज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब ट्रंप अगर बंद करेंगे तो इन कंपनी के इंटरेस्ट को चोट लगेगी, ये एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर, अब वो बात करते हैं अपनी कंपनियों के ऊपर टैरिफ रेट के बारे में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट इंडिया में चली हुई है, मेक इन इंडिया, जिसके तहत अमेरिकन कंपनीज ने काफ़ी एग्री किया, कंपनी अपने देव ऑलमोस्ट एग्रीड के आकर के हम इंडिया में बनाएंगे। M777 हॉविट्जर की बात हो गई, चाहे ड्रोन्स की बात हो गई, लॉकहीड मार्टिन ने भी कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट यहाँ बनाएंगे। तो देव ऑल्सो गॉन इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स विद इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब अगर ट्रंप इस तरह से कहते हैं टाइटनिंग द नूज, इफ यू कीप ऑन टाइटनिंग द नूज लाइक दैट, सो इट विल अफेक्ट द somehow it will affect it will affect the business and the Make in India campaign. Yes. Now, what is the opportunity in this case? अब अगर ऐसी बात होती तो आज अभी तो इंडियन मार्केट गिर गया होता। But what is the opportunity for us is that while he is talking about 10% to 20% tariff increase on other countries, he is talking about 60% tariff increase on China. Yes. तो अब क्या हो रहा है, अगर चाइना के ऊपर आप 60% टैरिफ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मार्केट्स होंगे जो जहां से चाइना को पुल आउट करना पड़ेगा। Yes. चाइना के लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उन अमेरिकन मार्केट्स में या उन मार्केट्स में जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वहां से वो चाइना पुल आउट करेगा। नाउ चाइना का अल्टरनेटिव क्या है दुनिया के सामने? इंडिया। नाउ दीज मार्केट्स विल ओपन अप फॉर इंडिया। तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज भी, हमारे सामने थ्रेट भी हैं। तो इंडिया के केस में प्राइमरी थ्रेट जो है वो, अगर हम बात करें ट्रंप के आने से, तो ट्रेड का है, वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, इंडिया के लिए थ्रेट भी है। बट एट द सेम टाइम, अब जैसे उन्होंने अपने उसकी तुरंत बाद क्वाड की मीटिंग हुई, तो इंडिया को ये सोचना पड़ेगा क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ एशिया। तो क्या होता है कि अब जब ये बातें चल रही हैं तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को एक स्ट्रांग अलाई चाहिए जो अमेरिका की मदद कर सके चाइना को काउंटर करने में। सो इंडिया शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बिकम ए टूल ऑफ अमेरिका टू काउंटर चाइना। देखिए, हमारे लिए अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और हम अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम करना है। तो ये अभी मिक्स चीज़ें हैं, कौन गुड होगा कौन बैड होगा। अब फाइनली मैं आपको अगर एक वर्ड में आंसर बोलूं तो फाइनली कौन गुड होगा कौन बैड होगा ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि ये अनाउंसमेंट्स एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में कन्वर्ट नहीं हो जाते। बिल्कुल सही बात है सर। देयर इज स्टिल टाइम टू डिस्कस अबाउट इट, लेट दैट व्हाट वुड हैपन इन नियर फ्यूचर और मे बी हैपन इन फार फ्यूचर फॉर इंडियन पॉलिसीज एंड इंडियन बिजनेसेस। बट डेफिनेटली सर, इफ आई टॉक अबाउट इंडियंस इन अमेरिका, a lot of diaspora and NRIs have helped Trump. Even Indians in India are celebrating the victory of Trump. What is that with Trump that he attracts Indians so much? And what were the role of Indians there? देखिए, the secret lies in the previous tenure of Trump. जब ट्रंप का पहला टेन्योर था उस वक्त में भी ट्रंप को काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियन डायस्पोरा ने सपोर्ट किया। और आज भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इंडियन डायस्पोरा को देखेंगे तो लगभग वो पूरे अमेरिका में 1.5% के आसपास है। बट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्नओवर देते हैं। ऑलमोस्ट मैं कल एक डेटा कुछ पढ़ रहा था, कल लगभग 200 से $250 बिलियन का टैक्स अकेले अमेरिकन डायस्पोरा इंडिया के अंदर देता है। जो कि अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 40% होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आर ओन्ड बाय देम। मेजॉरिटी ऑफ द IT सेक्टर इज ओन्ड बाय इंडियंस। नासा में इंडियंस बैठे हुए हैं। तो अमेरिका को पता है कि इंडियंस के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा की ट्रंप की विक्ट्री में, तो बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर आप इसके पहले बिडेन की जो गवर्नमेंट थी या उसके पहले जब भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तानी रहे हैं, एंटी इंडियन रहे हैं, इंडिया के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे हैं। बट ट्रंप का पहला टेन्योर जो था वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। इवन जब ट्रंप अपने इलेक्शन लड़ रहे थे जो बाइडेन के अगेंस्ट, उस वक्त में मोदी ने भी कहा था, नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया के लोग ट्रंप को अपने साथ करीबी समझते हैं और ट्रंप भी देखते हैं। देखिए, कौन पावर में है? JD वांस की वाइफ उषा वांस क्या है? वो इंडियन है।
Even the cabinet ministry कैबिनेट also has a मिनिस्ट्रीज lot हैं, of Indian लॉट ऑफ people. इंडियंस देयर देयर। आप देखते हैं नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे कश पटेल, वो भी आपके जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग उनके मिनिस्ट्री में हैं। और ट्रंप को ये लगता है कि इंडियन लोग उनकी मिनिस्ट्री में दे कैन नॉट ओनली ऐड वैल्यू टुवर्ड्स द, नॉट ओनली ऐड इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बट ऑल्सो दे आर ट्रस्टवर्दी। True. ट्रस्टवर्दी। तो अब ये बात है, तो कहीं ना कहीं देखिए इंडियन डायस्पोरा के दो आउटलुक हैं। पहली बात तो ये कि उनको लग रहा है कि उनको रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में मिल रहा है। आप पुरानी डेमोक्रेट की गवर्नमेंट देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। अब कमला हैरिस की बात करते तो कमला हैरिस वो कहती थी कि आई एम ए साउथ एशियन नॉट एन इंडियन। सर कैंपेन के एंड में आते आते तो उन्होंने अफ्रीकन बता दिया था अपने आप को। हाँ, तो अब क्या बात आती है जब आप बात एफ्रो इंडियन बोला उन्होंने, Afro वर्ड Indian यूज। बोला, अब जब कमला हैरिस थी ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन की थी, बट उन्होंने कभी अपने आप को प्राउडली इंडियन नहीं कहा। Yes. बट हाँ, यहाँ पर जो आपके विवेक रामास्वामी हैं, काश पटेल, काश पटेल हैं, उषा वैंस, ये सब लोग अपने को प्राउडली इंडियन कहते इवन हैं। तुलसी गबार्ड फॉर तुलसी गबार्ड ऑल्सो। तो अब क्या होता है, जो इंडियन डायस्पोरा है, rather than connecting itself with Kamala Harris, they are connecting more with Kash Patel and Vivek Ramaswamy and Usha Vance. यस। तो उसकी वजह से एक सपोर्ट बहुत अच्छा है। अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 to 70% पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा आर सपोर्टिंग ट्रंप। और उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में उनको कंट्रीब्यूशन भी किया है, फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट किया, उनके कैंपेन में डोनेशन भी काफ़ी दिया, कैंपेन भी काफ़ी किया, सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें चलाई हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा के साथ ये H1B वीजा वाला जो इशू है, इट इज अफेक्टिंग इंडियंस अ लॉट राइट नाउ, बट देन आल्सो इंडियंस आर स्टिल विद हिम एंड डू वांट ट्रम्प। अभिषेक, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, देखिए H1B वीज़ा के ऊपर जो अनाउंसमेंट आई है, अभी आपको पता नहीं है कि उसका ऑर्डिनेंस कितना बड़ा होगा। वो अनाउंसमेंट को अभी ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट होने में वक्त है। वो कन्वर्ट होगा, उसमें किस कंट्री को कितना कोटा दिया जाएगा अभी क्लियर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया को बल्क में कोटा दे और बाकी कंट्रीज का कोटा काट दे। यू नेवर नो। अभी हमें पता नहीं है भाई। अगर आपके पास H1 वीजा में 1 लाख का कोटा है, 1 लाख कोटे में आपको लगता है कि करंटली 10,000 इंडियंस का कोटा है, कल को वो ये कर सकते हैं कि 1 लाख को काट के 50,000 कर दें, बट उसमें इंडिया का कोटा बढ़ा के 15,000 कर दें और बाकी 35,000 बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक कि ट्रंप के अनाउंसमेंट्स टिल द टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू डिसीजंस, इट विल बी फ्यूटाइल टू बिलीव ऑन दैट। Sure. Sir, one more ally India has, that is Russia. And India has always been a good friend or a partner with Russia. But if we talk about US, even in Joe Biden's his stay at the White House, Modi was invited quite a few times there. And even for the state visit, Modi went there. What is that love and hate relationship US has, and how can India, keeping China and Russia as good neighbors, as good friends, can kind of create a good relationship with US? Or should India like take a step back from US and focus more on Russia or China? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री एनी मोर। Yeah. We are the 4th or 5th largest economy in the world now, and we are a powerhouse now. I would like to call India as a powerhouse. So India must take its own decisions, irrespective of being part of either US-led coalition or being part of a Russia-led coalition. India is independent. अब अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप को लव हेट रिलेशनशिप को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रशिया हैज बीन अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में वी आर थॉइंग द रिलेशनशिप, लाइक रिलेशनशिप इज इंप्रूविंग। आज अमेरिका के साथ जो हमारा रिलेशन है वैसे नहीं है जो 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, जहां हम अमेरिका के साथ में दे वर वेरी क्लोज अलाइव विद पाकिस्तान। Yes. आज वो हालत नहीं है। They gave F-35s हाँ, to नो Pakistan. F-16, sorry, yes. ठीक है, अब वो हालत नहीं है। इंडिया हैज टू बैलेंस आउट थिंग्स। सी, अब हमने क्या किया, हमने रशिया से, जैसे फॉरेन, अब देखिए रशिया से हमने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, बट एट द सेम टाइम हमने अमेरिका से MQ-9 गार्जियन ड्रोन्स भी खरीदे। Yes. अमेरिका से हमने और सारे वेपन्स भी खरीदे हैं। तो अब हमारे को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज अवर नीड, विल बाय फ्रॉम यू। इट इज नॉट दैट कि वी आर एट योर मर्सी, वी आर एट योर स्टेक। नो, वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट। India has to take its own call. India has to take its own calls. We are good friends with Russia. We will remain good friends with America also, but it has to be mutual. Similarly, with Russia, it is also going to be mutual. Sir, if China comes in between, because as you said, US and China are not going to get along very well, and India, if India makes good use of it, it can kind of make a fortune out of it.
or if India gets more in trouble, because if US allies with India or the relationships get more better, China is going to create some trouble on the borders. It is for sure. And right now, after the BRICS summit especially, India, China and Russia relations are getting better. It's on a better note. I don't know for how long, but yes, they are on a better note right now. How China will react to it if there is a big deal in between India and US, and what is going to happen? How is India going to balance that? देखिए, आपको समझना पड़ेगा चाइना की प्रायोरिटी क्या है और अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है. चाइना wants an economic dominance over the world. Economic dominance. They are not bothered about geography. They want economic dominance. They want to rule Chinese economy everywhere. They're doing it right now. They're doing it right now. America wants a अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वर्चस्व. नॉट ओनली इकोनॉमिक बट इन ऑल टाइम्स. वो चाहते हैं कि भाई मेरे कहने से वॉर रुक जाए, मेरे कहने से वॉर हो जाए, मेरे कहने से यहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ने लग जाए, मेरे कहने से एक कंट्री काम कर जाए. स्पेशली ट्रम्प बीइंग इन पावर, दिस इज देयर मेन मोटो. अब डिसीजंस उसी तरह के हैं. तो अब दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं. वंस अगेन इंडिया की भी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं. इंडिया हैज टू ग्रो, इंडिया हैज टू ग्रो, इंडिया हैज टू ग्रो मल्टीफोल्ड. इंडिया हैज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ वेरी फॉर्मिडेबल पावर इन द वर्ल्ड. आज हमें अगर अपने आप को पावर के तौर पर डेवलप करना है तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा. चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट किस तरह के हैं? चाइना के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं. ऑफकोर्स वो पुराने आज के नहीं हैं, वो आज़ादी के पहले से ही हैं और बाद से लगातार वो बॉर्डर डिस्प्यूट चले आ रहे हैं. हमारे पास इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं, हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो हमारे को क्लैश करते हैं. और इसके अलावा अदरवाइज बट बोथ द कंट्रीज हैव बीन सेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कल्चर. तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं. यस. तो हमारे लिए इट इज़ नीदर करेक्ट टू बी एन एनिमी टू चाइना. सो दैट्स व्हाट मैंने आपको पहले भी यही कहा. इंडिया शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बिकम ए टूल, अमेरिकन टूल टू काउंटर चाइना. सही बात आती है अपनी संप्रभुता के लिए. हम कहते हैं ना वी आर सोवरेन नेशन. तो सोवरेनिटी हैज़ टू बी इन टोटो, इन कंट्रोल, इन एब्सोल्यूट सोवरेनिटी कि भाई हम चाइना के साथ नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम nobody can challenge us, nobody can dictate us our terms that we will be an enemy to China. We are not an enemy to China. We are not an enemy to Russia also. We are not an enemy to America also. ठीक है. If you remember long back, there used to be a column of Khushwant Singh used to come in the newspaper. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. Yes. So India has to follow that ideology. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. We are independent. We have to grow ourselves. हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है? अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना, अपने आप को बढ़ाना. एवरीबडी शुड बी, लेट्स पुल आउट एवरीबडी आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. Let's develop the country. Like Prime Minister has given a vision for India to become a developed country by 2047, not far off. We are already in 2025. So we got another 22 years left. तो 22 साल में आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, वो विजन आपको फॉलो करना है. उसको किसी के साथ दुश्मनी करके या किसी से दोस्ती करके या किसी का एलाई बन के या किसी का एंटी एलाई बन के या किसी ग्रुप का पार्ट बन के यू कैन नॉट अचीव इट. True, true. तो सेम गोज विद चाइना एंड रशिया. Sir, when we talk about China and when we talk about US, a lot of wars are going around right now. Like Russia-Ukraine war, it is just on the brink of ceasefire, although we are just waiting for the final decision. If we talk about Israel and the Hamas war, it has finalized that the ceasefire will happen and US has brokered it somehow. Although every war, any war that happens, or it had happened in last 5 years, 10 years, US has been a major name behind the war. We can also call it the elephant in the room. And with Trump coming in power, will he kind of come out of this image? Can he address the elephant in the room? Can he end this war game now? See, Abhishek, we have to see two things. On one hand, while we are seeing that Trump has issued directives, okay, let's end the Ukraine war, let's end the Hamas war, वो एक पार्ट है. सेकेंड पार्ट जब वो बार बार ट्रम्प अपनी चीज़ें डिक्टेट करता है, ओके भाई नाटो कंट्रीज बड़ी वेल स्पेंड 2% ऑफ योर GDP ऑन डिफेंस, अदर कंट्रीज आई पुट टैरिफ ऑन यू. तो अब वो कह रहा है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इज गोइंग टू बी इवन ए बिगर एलिफेंट इन द रूम. America is going to be even a bigger elephant in the room. Things are going to get worse. Yes, but the priorities will change. Okay. Trump is not having the military priorities. It is that's why उसने अभी recently जो dark अपना उसका deep state का जो उसने statement दिया वो भी इससे related था. तो अब we'll talk about it later. But talking now, he is changing the American priorities, or he is going to change the American priorities as we see from his statements, from the military priorities or strategic priorities to economic priorities.
वो कहता है भाई मुझे आम अमेरिका की बात करनी है, आई वांट टू टॉक अबाउट द कॉमन ह्यूमन अमेरिकंस, आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे बात ही नहीं करनी है किसी और कंट्री की, आई डोंट वांट टू सपोर्ट एनी कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ ए कॉमन अमेरिकन। सो दिस इज द स्टेटमेंट। सो अभी इज टॉकिंग अबाउट, उसने क्या किया, इमिग्रेंट्स के ऊपर रोक लगाई। Yes. He said कि okay, Mexico, Gulf of Mexico, all those things, Gulf of Mexico will be Gulf of America, Panama Canal will be American Canal, all those things he's saying. So ultimately वो कहीं ना कहीं अपने टर्म्स को डिक्टेट भी कर रहा है, अपनी चीज़ों को पुश भी कर रहा है, अपनी चीज़ों को बुलडोज भी कर रहा है, अपनी चीज़ों को दूसरों के ऊपर थोप भी रहा है, और एट द सेम टाइम वो कहता है कि मैं वॉर से लग जाऊंगा। तो certainly जो अमेरिकन एलिफेंट इन द रूम, इट इज गेटिंग बिगर इन द साइज, बट इट्स प्रायोरिटीज आर चेंजिंग, इट्स नॉट किलिंग एनी मोर, इट इज स्नैचिंग। अभी आज की डेट में आपको नहीं लगता कि वॉर कहीं बहुत वर्ल्ड वॉर के जैसे, देयर नो सिनेरियो। इफ समबडी आस्क्स मी क्या व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर, आई विल नो, बिकॉज अभी वर्ल्ड वॉर, अभी इतने सारे, पहले क्या था, 2 स्टेक होल्डर्स, अभी इतने सारे स्टेक होल्डर्स नहीं है, अभी वर्ल्ड इज नॉट पोलराइज्ड, वी हैव कम आउट ऑफ दोज डेज व्हेन वर्ल्ड वाज पोलराइज्ड। सो देयर इज वेरी वेरी bleak chances that world will enter into world war. तो जब उसके chances नहीं हैं, तो at the same time the only way you can achieve success is by developing yourself economically. Sir, the word that you had used right now, deep state. What exactly is deep state? Donald Trump has been using this word in his whole campaign. This word has been in US politics for a very long time. And deep state is something Kash Patel is also related with. I would also ask you to speak briefly about Kash Patel, but before that, can you tell us what, and our audience also, what is this deep state? Is it also kind of in India, or is it controlling the governments all over the world? See, deep states are everywhere. You talk about India, you talk about Pakistan, you talk about America, you talk about UK, you talk about other countries of Europe, you talk about even the Arabian countries. डीप स्टेट आपको कहीं हर जगह मिलेगा, बट डीप स्टेट का जो इन्फ्लुएंस है दैट कैन बी स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। नाउ व्हाट इज द डीप स्टेट? लेट्स अंडरस्टैंड। डीप स्टेट इज प्राइमरीली यू कैन से syndicate sort of thing, not an open syndicate but is a hidden syndicate, covered syndicate, undercover syndicate. उसमें कौन कौन शामिल हैं? उसमें आपके इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल हैं, मिलिट्री प्रोड्यूसर्स शामिल हैं, जो बड़े बड़े आर्म्स कंपनियां वो शामिल हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उसमें नॉमिनेटेड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। अमेरिका में 2 तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, प्रॉपर अपना एग्जाम पास करते हैं, सिलेक्ट होते जाते हैं, एक वो होते हैं जिनको नॉमिनेट पॉलिटिकल पार्टी कर देती है, तो पॉलिटिकली नॉमिनेटेड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। देयर आर फ्यू पार्ट ऑफ जुडिशरी हु आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। अब ये डीप स्टेट चाहता क्या है? ये डीप स्टेट चाहता है कि भाई फ्यू पीपल हु आर कनेक्टेड टू डीप स्टेट दे कीप ऑन ग्रोइंग, कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहे, तो क्या होगा? मिलिट्री आर्म्स और मिलिट्री हार्डवेयर के प्रोड्यूसर हैं, उनके पास डिमांड आती रहेगी, बिजनेस आते रहेगा, कहीं भी लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिका का एग्रीमेंट उन कंट्रीज के साथ है, वो कहाँ से खरीदेंगे? यूएस से। अभी देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखिए इजराइल हमास वॉर, एग्रीड है, सब लड़ाई हो रही है, इजराइल इज फाइटिंग इट्स वॉर विद हमास। व्हेन इजराइल हैड शॉर्टेज ऑफ इट्स आर्म्स एंड एम्युनिशन, कहाँ से खरीदा उसने? यूएस से खरीदा। किसका फायदा हुआ? अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का, अमेरिकन मिलिट्री मशीन्स का। Who drove it? Deep state. तो ये जो डीप स्टेट है, ये बहुत बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है, और चाहे विवेक रामास्वामी अपनी बात कर लें, चाहे ट्रंप अपनी बात कर लें, इसको अप्रूव करना 1-2 दिन का काम नहीं है, इसको एक्सपोज करना भी 1-2 दिन का काम नहीं है। Nobody knows how deep it is, nobody knows how well entrenched it is, and nobody knows how it is going to affect America. अभी देखिए प्रायोरिटीज नहीं है, बट अभी आगे क्या चलेगा किसी को नहीं पता। सर लास्ट क्वेश्चन, क्विकली एक छोटा सा आंसर आपसे इससे मांगूंगा। पीएम मोदी वाज नॉट invited to the event, while Xi Jinping was personally invited to the event. There was a lot of it was not personally invited. See, these are diplomatic issues. You have to understand. जहाँ शपथ ग्रहण हुआ, स्वेरिंग इन हुई, उस हॉल की कैपेसिटी कितनी है? 600। किस तरह से लोग बैठे हुए आपने देखा था वीडियो में। ये एक बात होगी। दूसरी बात, आप देखते हैं स्टेचर ऑफ द लीडर्स। मोदी इज नॉट अ लीडर ऑफ ए स्मॉल कंट्री, ही इज एट पार विद ट्रंप। तो आप अगर मोदी को इनवाइट करते हैं, तो मोदी जी के साथ लिए आपको प्रॉपर सीटिंग बनानी पड़ेगी, आपके लिए प्रॉपर वहाँ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्वड इन दैट। आपको क्या लगता है शी जिनपिंग आए थे? नहीं आए थे, डिडंट कम। Although S. Jaishankar for front row, S. Jaishankar came. So these things are diplomatically decided. It's not like कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। अगर मेरे आपके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो मैं आपसे डिसाइड करूंगा भी मेरे प्रेसिडेंट का स्वेरिंग इन है, तो उस स्वेरिंग इन के अंदर आप किसको भेजना चाहेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, विल सेंड द फॉरेन मिनिस्टर, सो इन्विटेशन कम्स फॉरेन मिनिस्टर।
where I'm not connected to you, where I'm not into talking terms with you, where I'm not into diplomatic relations with you, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें हम डायरेक्टली वो भेज देते हैं, ओके ठीक है, टू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कम So this whole chaos was more of political. See, we don't have to go into nitty-gritties. These are diplomatic issues. और आज तक हिस्टोरिकली कोई बहुत बड़े बड़े जो दो कंट्रीज हैं, दो सुपर पावर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट्स एक दूसरे की स्वेरिंग इन में नहीं आए हैं until unless they're very very close friends. Russia is our close friend. Even Putin did not come for swearing in ceremony of Modi, though he was invited. So there are two things: stature, protocol, and the diplomatic relationship. उस पे depend करता है. It is not it's basically a fuss, I'll call it. Sir, thank you so much for coming to the show. Your information was really helpful. Or I would like to invite you again because अगली बार I would want us to talk more of Indian perspective and Indian borders. Sure. And let's make another show for our audience. Thank you so much guys for watching the video. Do like, share, comment and subscribe the channel and do share it with your friends. And thank you.